خوشیاں جو ہیں وہ اس طرح جاتی رہیں. غریب کا بچہ جب بھوکا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ باپ نے کہاں سے لانا ہے. جوڑنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے, پل کا کام کریں. ایسی وائلیشن نہیں ہوگی جس سے کسی کا نقصان ہو. ہم خود چاہتے ہیں, ہم ہنسانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں خوشیاں بانٹنے والے ہیں. ان 3 گھنٹوں کے اندر, ان 2 گھنٹوں کے اندر دنیا کتنی سائلنٹ ہوتی ہے. ایک جگہ پہ صرف ہنسی ہو رہی ہوتی ہے, مذاق ہو رہا ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی تھیٹر ہوگا, سب ڈائریکٹر جو ہیں, سب رائٹر جو ہیں, ڈرامہ جو ہے وہ اس طرح کا لکھیں گے کہ سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا. اسٹیج کے اوپر بھی 3 سے 4 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی چیئرز کو لگایا, بالکل اسی طرح رہے گا. اور جو ہماری پچھلی سیٹیں ہیں ان میں سے بھی ایک ایک سیٹ چھوڑ کر آدمی بیٹھے گا. کیونکہ آج میرے دل سے نا بہت وہ کہتے ہیں نا پامڑ بن جاتے ہیں. یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس پروڈیوسر جو 1 سال بھی تھیٹر نہ ہو تو ان کا گزارا ہو جائے. میرے جیسا فنکار گزارا نہیں کر سکتا. مجھے سب سے جو زیادہ دکھ ہوا ہے 27 سال میں نے اس فیلڈ کی خدمت کی, بری کی, اچھی کی. عابد خان صاحب نے 35 سال خدمت کی اس تھیٹر کی. آج تک اتنا اگنور نہیں کیا گیا ہماری انڈسٹری کو جتنا اس کرونا میں کیا گیا. شوکت خانم کے لیے آئے تو کیونکہ میں اس وقت پڑھتا تھا تو عابد بھائی کے ساتھ ہوتا تھا, انہیں کے گھر میں ہوتا تھا. تو میں عابدہ پروین صاحبہ, سجاد علی صاحب اور عابد خان صاحب گئے جاپان میں. ان فنکاروں کو ہیرے کی انگوٹھی انعام آئے. مجھے آج بھی یاد ہے تو ان سب نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے اتار کے وہ جو عمران خان صاحب کا باکس تھا صاحب ہے, اور یہ ہمارے فنکار لوگ سارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے جو اپنا ایک تھیٹر کو چلانے کے لیے مہم چلائی ہے اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں گے. یہاں پر باہر سینیٹائزر مشین جو وہ لگ جائے گی, ماسک کا استعمال کیا جائے گا, اور دوسرا سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے گا. جناب سکی سرور بٹ صاحب, کیسر ثناء اللہ صاحب, وکی بھائی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ آج جو کاوشیں انہوں نے یہ کی ہیں سب آرٹسٹوں کی یا پروڈیوسر وغیرہ, یہ نقصان تو ہمارا ہونا ہے. ہمارا جو کام ہے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے, چیف سیکرٹری کو چاہیے کہ یہ کام جو ہے ہمارا لیٹ ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر سی گزارشات ہیں کہ ایسی چیزوں پر پابندی لگانے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا جس انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے پبلک میں قوت مدافعت پیدا ہو. اور جب تک قوت مدافعت پبلک میں پیدا نہیں ہوگی دنیا کی کسی بیماری کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے, اور صحت مند ہونے کے لیے تفریح ہونا بہت ضروری ہے. اور تفریح پیدا کرنے کے لیے فنکاروں کو گھر نہیں بٹھانا چاہیے, ان کو تھیٹروں کے اسٹیج پر لانا چاہیے. میں اس کی اگینسٹ جو غربت, بھوک اور افلاس کا وائرس پیدا ہوگا آنے والے وقت میں اس سے بہت سارے لوگ مریں گے. میں عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت سے گزارش کروں گا کہ کب تک سکی سرور کمپنی اور ہمارے سینئرز جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے فنکاروں کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور وہ بیچارے اپنے چولہے جلاتے رہیں گے. ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور ہم لوگوں کو اسٹیج پر لایا جائے. ہاسپٹل میں روزانہ 3 سے 5 بندے مرتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے روزانہ عام زندگی میں. یہ کرونا سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. پریزیڈنٹ اور وزیر اعلیٰ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو عوام کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور یہی تو وقت تھا جہاں ہمیں پتہ چلنا تھا کہ ہمارے پریزیڈنٹ کیا کر رہے ہیں, ہمارا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے. خاص طور پہ جتنے بھی تھیٹر ہیں سارے کے سارے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں. ہمارے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, سینیٹائزر 1.5 کروڑ کا سینیٹائزر ہوگا, وہ ایک پیپا لا کے رکھ لیں گے 400-450 بندے واسطے 2 پیپے پڑیں گے. یا عوام کو مزید پینک کرنے کے ان کو ریلیکس کیا جائے, ان کو انٹرٹینمنٹ کی طرف سے لایا جائے تاکہ کم سے کم پیشنٹ ہوں. آپ کو ٹیکس پہنچ چکا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے فنکاروں کے لیے کوئی بھی نہیں سوچا. سب نے کہا ہے کہ کوئی بھی نہیں سنتا.
तो मैं अपने भाइयों को एक थोड़ा सा, या तो मैं आपसे छोटा हूँ लेकिन मैं आपको बात करने लगा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात सुने तो खुदारा अपनी यूनियन बनाए। कोई दुखी होता है, कोई सीखता है कि क्यों वो दुख इसको मिल रहा है, कोई कॉमेडी से हंसता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है, डॉक्टर कह रहे हैं। तो हम इतना काम कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे, किसी को तोड़ नहीं रहे, किसी को छेड़ नहीं रहे। हम खुद अपनी हालात से, गवर्नमेंट के हर हालात से, हर गवर्नमेंट के हालात से, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे बेनजीर की हो, हम टैक्स देते हैं, तो भी वो खत्म नहीं होता तो 12:30 बजे गवर्नमेंट की जेब में चले जाता है। अगर आप 50 सालों का हिसाब लगाएं तो पूरे पंजाब में कितने थिएटर हैं और कितना अरबों रुपया इन्हीं फनकारों ने जो है इकट्ठा करके दिए। टीवी पे चलता है कि 90 अरब रुपए हमने जो है वो बांट दिए हैं कोरोना से जो लोग बता सकते हैं। बदकिस्मती से उन 90 अरब में ये सारे जूनियर फनकार बैठे हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो अपना किचन ड्रामे के बगैर इन हालात में चला सकते हैं। 95% जो फनकार है वो किराए के घर में रहता है। 95% जो फनकार हैं इनमें से किसी को इस कोरोना वबा में ना राशन मिला ना माली इमदाद मिली। इन्होंने गुजरावाला में, मुकाम में, फैसलाबाद में जो 8 काउंसिलें बनाई हुई हैं और 90 अरब रुपया आपने बांट दिया और 90 अरब में से किसी फनकार को 1 रुपया नहीं मिला। इतनी ज्यादा, और ये सारे फनकार जो हैं कमाऊ हैं, इन्होंने कमा के दिया है। और पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि 1.5 घंटे बाद पैसा गवर्नमेंट की जेब में चले जाता है। कोई बिजनेस आप मिसाल दे दें, सिर्फ एक है थिएटर कि जिसका पैसा रात को 11 बजे शो शुरू होता है, 12:30 बजे एक्साइज का इंस्पेक्टर पैसे लेके चले जाता है कि इतना टैक्स बना है। खुदारा मेहरबानी करें, उस्मान बुजदार साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, अलीम खान साहब, मियां असलम इकबाल साहब, ये पंजाब गवर्नमेंट के सारे आला अहदेदारान हैं। खुदारा थिएटर की तकलीफ को, इन फनकारों की तकलीफ को समझे। कोई गवर्नमेंट ने कोई इमदाद नहीं दी, ना वफाकी गवर्नमेंट ने, ना पंजाब गवर्नमेंट ने। आखिर में जो हमारा वन लाइन एजेंडा है, बराए मेहरबानी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ईद उल फितर से एहतियाती तदाबीर के साथ पंजाब भर के थिएटर खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि तमाम फनकार, टेक्नीशियन, प्रोड्यूसर, थिएटर मालिक अपने काम पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली जो कोरोना की वजह से बंद किया गया, ये हमारा स्टेशन बरकरार रखते हैं हम लोग, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, और जो एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट ने दी उसके हवाले से थिएटर को, सिनेमाज को, जो गैदरिंग पॉइंट है, इनको बंद कर दिया गया। अभी इनके आपने लोगों ने मुतालबात पेश किए हैं, ये इंशाल्लाह पहुँचेंगे। मेरे ख्याल मेरे अलावा भी टीम बैठी हुई है, बताएंगे जो भी मामला होंगे उसके मुताबिक, जो SOP के मुताबिक मिलेगा उस पर पे करेंगे। या अब मैं समझता हूँ कि आपका भी मामला दुरुस्त होने चाहिए, होना चाहिए, मैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आफरीन परी और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे हुकाम आला हैं, हमारे थिएटर के सखी सरवर भट्ट साहब हो गए और कैसर सनाउल्लाह, मलिक तारिक साहब, अरशद चौधरी साहब, इन लोगों ने मिलकर तमाम लोगों को, तमाम फनकारों को इकट्ठा करने की ज़रूरत भी थी। आप ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका एक मकसद ये था कि जो आर्टिस्ट बरादरी है, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, उनके हक में भी कुछ किया जाए। यकीन जाने वज़ीर आला साहब, आपने डॉक्टर्स के लिए खराज तहसीन पेश किया, इसी तरह आप आर्टिस्टों के लिए भी पेश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबक आमोज ड्रामे पेश कर सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं माशरे की। हमने हमेशा ऐसा ही किया है और आपने जिस मजदूर तबके का साथ दिया, आपने इतने सख्त लॉकडाउन में भी उनका साथ दिया कि ये लोग लॉकडाउन से ना मरे तो ये लोग भूख और अफलास से मर जाएंगे। यकीन जाने हम भी वही मजदूर तबका है, जिस सफ़ेद पोश तबके का आप जिक्र करते हैं, हम वही लोग हैं, हम वो सफ़ेद पोश लोग हैं कि हम तो किसी से मांग भी नहीं सकते और यकीन जाने हम तो मांगने की कोशिश भी नहीं करें। हम ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके खाएं और बल्कि जो मेहनत की रोजी कमाए से दूसरों की मदद करें। तो आपने जहाँ पर एक चांस तमाम मुल्क के लोगों को दिया
उन तमाम शोबों को दिया जिन्हें आप ज़रूरी समझते थे, एक चांस हमें भी मिलना चाहिए। आपने कहा कि अगर इस लॉकडाउन को मैं खोल रहा हूँ, अगर इसमें कोरोना वायरस से का जो है वो बढ़ा तो मैं दोबारा लॉकडाउन कर दूंगा, तो इसी तरह एक चांस आप हमें भी दें। अगर कोरोना वायरस बढ़ा तो आप इसे दोबारा लॉकडाउन कर दीजिए, क्योंकि आपके पास हक है इस चीज़ का, आप फैसला कर सकते हैं, आप ऑर्डर जारी कर सकते हैं। और आप अगर ये कहें कि शादी हॉल्स और थिएटर, सिनेमाज और इन चीज़ों में फ़र्क नहीं है, शादी हॉल का एक मालिक होता है और चंद लोग होते हैं, और हमारे इस थिएटर के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके चूल्हे, जिनके घर इस थिएटर से चलते हैं। आपको बज़ाहिर कुछ लोग ऐसे लगते होंगे कि ये आर्टिस्ट हैं, ये तो अपना गुजारा कर लेंगे, वो सिर्फ 5% लोग हैं। जो 95% लोग हैं वो अपना गुजारा नहीं कर सकते। तो हम लोग भी उनकी मदद करेंगे, लेकिन कितनी देर कर लेंगे, आखिर कुएं भी खाली खाली हो जाते हैं। हमें किसी मांगने की जरूरत नहीं किसी से, हम ये चाहते हैं कि खुद मेहनत करें, खुद कमाएं और इससे दूसरों की भी हेल्प करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की फनकारों को और थिएटर से वाबस्ता प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और थिएटर मालकान को अशद ज़रूरत थी। जब लॉकडाउन में इतनी नरमी कर दी गई है तो थिएटरों का खुलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो शराइत हैं वो उन जो मुनासिब हिदायत हैं उन पर अमल करना जो है वो थिएटर वालों का, हम लोगों का फ़र्ज़ है। और किसी भी मुल्क में किसी भी वायरस से निपटने के लिए मुसलसल महीनों तक, सालों तक जो है वो लॉकडाउन लगाना कोई समझदारी नहीं है। इसकी मजीद प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग के तहत इस वायरस को ख़त्म कीजिए। पब्लिक को इंटरटेनमेंट से महरूम ना कीजिए और फनकारों को घर मत बिठाइए, क्योंकि किसी भी वायरस का मुकाबला करने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है और एनर्जी के लिए इंटरटेनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और इंटरटेनमेंट के लिए फनकारों का स्टेज पर आना बहुत ज़रूरी है। थिएटरों का खुलना बहुत ज़रूरी है, तभी पब्लिक एनर्जेटिक होकर किसी भी वायरस का मजबूती से मुकाबला कर सकेगी और फनकार इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मद्देनजर रखते हुए फनकारों के मसाइल को हल करते हुए ईद उल फितर के दिन से थिएटरों को खोलने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद खान। हम इस वक्त यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमने हुकूमत वक्त से यही गुजारिश की है कि प्लीज़ हमारा थिएटर खोल दिया जाए, हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। और दुख ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री ही नहीं माना गया, लेकिन हमें किसी गिनती में लाया नहीं गया। इमरान खान साहब ने जब भी आवाज़ एक्टरों को दी, बल्कि उनका शौकत खाना में जितना आर्टिस्टों का कंट्रीब्यूशन है किसी का है ही नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी फरमाइए, हम घरों में भूखे मरने वाले हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं, हम किसी के आगे हाथ ना करते हैं ना अब करना चाहते हैं। हमें आपके 15-20 हज़ार की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ बांध के हमारा थिएटर खोल दिया जाए। जो SOPs कहेंगे आप उन पर हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक थिएटर करेंगे। मेरी सिर्फ शॉर्टिंग में एक छोटी सी बात करूंगी वज़ीर आज़म से कि जी हम लोग बहुत परेशान हैं, आपकी हमें किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका हमें ये चाहिए कि आपने जहाँ पे हर चीज़ ख़त्म की है हमारे भी थिएटरों को बात किया जाए। हमारा रिज़्क रोटी इसी से बसता है, हमारे घर में हमारे बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें हमारा काम चाहिए, हम काम के साथ ही खुशहाल हैं, हमारे काम से ही हमें है। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, हम ना आपके आगे हाथ फैलाना चाहते हैं, हम अपनी मेहनत से अपने घर को मतलब कि संभालना चाहते हैं। आपसे हमारी प्लीज़ 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 गुजारिश है कि हमारे काम को बहाल किया जाए। कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस स्टेज की दुनिया पे, यानी हमारे जो बुजुर्गवार हैं आज वो सारे इकट्ठे हैं सिर्फ इस वजह से कि ये कोरोना वायरस की वजह से हमारा काम बिल्कुल बंद हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी प्लीज़ कि आप प्लीज़ हमारे थिएटर की तरफ गौर करें। फनकार बरादरी इस टाइम आपकी इमदाद तो नहीं कह सकते, आपकी मदद की मुंतज़र है। आप अगर हमारा ऐसा काम नहीं करते, हमें आपसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और अल्लाह डाले भी ना, सिर्फ चाहिए ये कि आप हम पे ये मेहरबानी करें कि हमारे थिएटर खुल जाएं ताकि हमारे बच्चों का रोज़गार बेहतर हो सके। यहाँ पे बहुत ही प्रोड्यूसर और बहुत ही फनकार आए हुए हैं और हमारी यही वज़ीर आला से गुजारिश है कि प्लीज़ आप थिएटर जो है ओपन करें। देखिए अब हर शॉप्स, हर मार्केट खुल रही है और हमारी यही है वज़ीर आला से गुजारिश कि वो प्लीज़ प्लीज़ थिएटर ओपन करें। इस वक्त हम लोग तमासील थिएटर में हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तमाम प्रोड्यूसर, तमाम एक्टर, तमाम डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, सहाफ़ी भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे थिएटर खुलने चाहिए, क्योंकि हम लोग लोगों को हंसाते हैं, उनको रुलाते नहीं हैं और हंसने से बीमारियां ख़त्म होती हैं, बढ़ती नहीं हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि प्लीज़ हमारे थिएटर खुलने चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे छोटे आर्टिस्ट हैं
जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इतना कुछ, तो वो इस वक्त इन दिनों में फाकों पे हैं, और जिनका कुछ नाम है वो तो चलें गुजारा कर ही लेंगे। हम गवर्नमेंट से इमदाद नहीं मांग रहे, हम लोग पैसे नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे थिएटर खुलने चाहिए, हम अपनी मेहनत करके खुद जो है ना मेहनत करें और खुद कमाएं। कि ईद वाले दिन जो है स्टेज और बाकी सारे जो है वो काम खोल दिए जाएं, वक्ती तौर पे जो लॉकडाउन है उसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टेज के साथ और बहुत सारे कामों के साथ रोज़गार जुड़ा हुआ है। अगर ये सब खोल दें और हम वारसती तदाबीर के साथ हम अपना काम कर सकें तो बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे हम हुकूमत के। हमें पता है कि ये चीज़ हमारी बेहतरी के लिए लॉकडाउन, पर बेहतरी से जो है वो जो है रोटी नहीं मिलती गरीब को, तो मेरी यही अपील है कि लॉकडाउन फिलहाल ख़त्म कर दिया जाए। सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि हमारा जो बात है, हमारी बात दूर तक पहुंचे, ताकि वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब तक हमारी बात पहुंचे, चौहान साहब तक हमारी बात पहुंचे। जैसे कि एक मजदूर के लिए खान साहब सोच सकते हैं, एक रेडी लगाने वाले, एक ठेला चलाने वाले के लिए खान साहब सोच सकते हैं, तो हम लोग तो मुल्क चलाते हैं, हम लोग अपने मुल्क की वजह से पहचाने जाते हैं। हम बाहर के मुल्कों में भी पाकिस्तानी कहलवाए जाते हैं और एक फनकार कहलाए जाते हैं। हम फनकार किसी से मांग नहीं सकते, और अगर हम मांगेंगे भी तो उस खुदावंद करीम से। मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें 20,000 नहीं चाहिए, हमें 30,000 नहीं चाहिए, आप हमारे थिएटर खोल दें, इंशाल्लाह इतने पैसे हम खुद लोगों को दे देते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये डिमांड हमारी वही है, मतलब डिमांड क्या अर्ज कर रहे हैं हुकूमत के आगे कि हमको भी ड्रामा खोलने की इजाज़त दी जाए, स्टेज मतलब हमारा भी जिस तरह मार्केट्स खुली है एहतियात के साथ, और जो हुकूमत की डिमांड है उसके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो ईद आने वाली है, आर्टिस्ट सभी मतलब बहुत डिस्टर्ब हैं, तो ये कुछ आर्टिस्टों का और प्रोड्यूसरों का कुछ फैसला है कि हुकूमत पर बोझ डालने से बेहतर है हमें ये इजाज़त दे दी जाए कि हमारा काम खोल दिया जाए। हम मतलब ये है कि हुकूमत पूरे पाकिस्तान का कर रही है, अब उस पर कितना बोझ डालेंगे हम, ठीक है। इसलिए आर्टिस्टों और प्रोड्यूसरों ने ये फैसला किया है कि डिमांड के साथ जिस तरह मुनासिब समझते फासला रख के, ये करके वो करके, तो सैनिटाइज़र के रेंज के साथ हमें थिएटर करने की इजाज़त दी जाए। मुतालबा किया है वज़ीर आज़म इमरान खान से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि खुदारा हमदर्दना गौर किया जाए। फनकार फाका कुशी का शिकार हैं, छोटा अमला बहुत बुरे हालात में है, ईद उल फितर से एहतियाती तदाबीर के साथ थिएटर खोल दिए जाएँ।